ایک مولوی صاحب ہمارے محلے میں رہائش پذیر تھے جن کی عزت سارا محلہ ہی کرتا تھا۔ مولوی صاحب بہت ہی نیک اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے، دین کی معلومات سے لوگوں کو مستفید کرتے۔ سب لوگوں کی طرح میں اور میرے ابا بھی مولوی صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ البتہ میری ماں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں مذہب کی باتوں سے الجھن ہوتی ہے اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گزار سکتی ہیں۔ مولوی صاحب کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اور وہ شہر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں جس مدرسے میں عربی پڑھتی تھی، مولوی صاحب وہاں کے استاد تھے اور میں نے ہمیشہ ہی مولوی صاحب کو بہت رحم دل اور محبت کرنے والا انسان پایا تھا۔ اکثر مولوی صاحب باتوں باتوں میں مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں حیران رہ جاتی کہ مولوی صاحب کو بھلا میری ماں میں کیا دلچسپی ہو گئی ہے۔ شاید میری ماں کی خوبصورتی کے چرچے مولوی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہمیں یہ خبر ملی کہ مولوی صاحب کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کا یہاں کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ہر بچے کی پیدائش پر ان کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی اور انہیں دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت پڑتی تھی۔ مولوی صاحب کے 3 بچوں کی پیدائش اسی محلے میں ہوئی تھی اور سارا ہی محلہ جانتا تھا کہ ہر بچے کی پیدائش پر انہوں نے کسی نہ کسی محلے والے سے گزارش کر کے اس کی بیوی کو مہینہ بھر اپنے گھر بلایا تاکہ وہ ان کی بیوی کا خیال کر سکے۔ مولوی صاحب کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ خوشی خوشی اپنی عورتوں کو ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب ہر پیر کے دن عورتوں کو درس قرآن بھی دیا کرتے تھے، اس لیے عورتیں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ جب مولوی صاحب کے گھر چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی تو سارے ہی محلے کو انتظار تھا کہ مولوی صاحب اب کس کو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے۔ محلے کے لوگ مولوی صاحب کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ ایک شام مولوی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے، ابا کو سلام کیا اور ابا کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کا انداز ہمیشہ ہی آزادانہ ہوتا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے شربت بنا کر لانے کو کہا۔ اماں تو مولوی صاحب کی آمد کا سن کر ہی کمرے میں جا بیٹھی تھیں، لیکن مولوی صاحب نے انکار کر دیا اور بڑی عاجزی سے ابا سے کہنے لگے کہ میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد بہت ناساز ہو جاتی ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ اگر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رہوں تو مدرسے کے بچوں کی عربی کا خرچ ہوتا ہے اور یہ بات میری ذات کو گوارا نہیں۔ میرے ہر بچے کی پیدائش پر ہی کسی نہ کسی محلے والے نے میری مدد کی خاطر اپنی عورت کو میرے گھر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ بس 1 مہینے کے لیے آپ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری بیوی کا خیال رکھ سکیں۔ کام کاج کے لیے میں نے ایک نوکرانی کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کسی ایسی بھروسے والی عورت کی ضرورت ہے جو میری بیوی کے قریب رہ سکے۔ اب تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ مولوی صاحب نے جس طرح سر جھکا کر ابا سے گزارش کی تھی، ابا کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہ باقی رہی۔ مولوی صاحب یوں بھی ابا کو بہت عزیز تھے۔ یہ تو ابا کے لیے امراض کی بات تھی کہ مولوی صاحب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری اور فہم فراست کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیوی شہناز کو روز صبح ہوتے ہی آپ کے گھر بھیج دوں گا اور وہ سارا دن آپ کی بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے تب شہناز گھر آ جایا کرے گی، اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ابا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ میں بہت ہی حیران تھی کہ مولوی صاحب نے اماں کو ہی کیوں چنا ہے۔ مولوی صاحب کا ایمان کو لے کر سوال جواب کرنا اور یوں ہمارے گھر تک چلے آنا میرے لیے کچھ عجیب تھا۔ اماں کو مولوی صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔
और ना ही वो उनके घर जाना चाहती थीं। लेकिन अब्बा हम ही भर चुके थे, इसलिए अम्मा के पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा बहुत ही आज़ाद ख्याल किस्म की औरत थी और उनके लिए मौलवी साहब जैसे लोग सिर्फ दकियानूसी ख्यालात के मालिक थे, जो औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखते। अम्मा तो सारा दिन घर के दरवाजे पर खड़े होकर गुजार देती। ना वो पर्दा करती थीं और ना ही सर ढांक के घर से बाहर निकलती थीं। वो गले में दुपट्टा डाले सारे जहां की सैर कर आती। अब्बा ने कई दफ़ा अम्मा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा को इस बारे में बात करने से ही नफरत थी। अम्मा हमेशा दो टोक लफ्ज़ों में अब्बा को कह देती कि वो अम्मा की आज़ादी पर पाबंदी ना लगाएं। अम्मा की खैर गैर मर्द से अच्छी बातचीत हो जाती। अम्मा जब घर से निकलती तो हर मर्द की नज़रें अम्मा के हसीन सरापे पर टिक जाती। अम्मा से घर के कामकाज भी नहीं होते थे, क्योंकि इस तरह उनके बड़े हुए नाखून और उन पर लगी नेल पॉलिश ख़राब होती, और ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए जब मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रखने की बात आई तो अम्मा ने अब्बा से उसी बात को लेकर बहस भी की कि अब्बा ने कहा, मौलवी साहब की बीवी की जिम्मेदारी उनके गले में डाल दी है। अम्मा को तो मौलवी साहब जैसे लोगों से पहले ही खुदा वास्ते का बैर था, लेकिन अब मजबूरी उन्हें मौलवी साहब के घर जाना ही था, क्योंकि अब्बा ने अम्मा से पूछे बगैर ही हामी भर ली थी। अगर मौलवी साहब ने मुझे ज़रा भी लेक्चर देने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त उनकी बीवी को छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। अम्मा ने अब्बा को खुलेआम धमकी दे दी। अरे वो तो तुम्हें लेक्चर क्यों देंगे, उन्हें तो अपनी बीवी की फ़िक्र है। अब्बा हमेशा की तरह अम्मा को मोहब्बत से मनाने लगे। अम्मा मौलवी साहब के जाने के बाद भी सारा वक्त गुस्से में बड़बड़ाती रही। उन्हें इस बात पर भी बहुत गुस्सा था कि मौलवी साहब को हमारे अलावा मोहल्ले में और कोई घर नज़र नहीं आया जो वो हमारे घर चले आए। अम्मा ने तो कभी मौलवी साहब की बीवी से मुलाकात तक नहीं की थी, और ना ही वो कभी औरतों के दर्स कुरान में गई थी। लेकिन ना जाने मौलवी साहब को क्या सूझी थी कि उन्होंने अम्मा का इंतखाब कर लिया। अम्मा चलते फिरते मौलवी साहब को कोस रही थी। अम्मा की मिन्नतों पर अगले दिन से ही अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि 2 दिन से ज़्यादा अम्मा मौलवी साहब के घर नहीं जाएंगी। मैं 14 वर्ष की हो चुकी थी और घर के कामकाज में अम्मा मुझे बहुत पहले ही तय कर चुकी थी, इसलिए अम्मा को अपने घर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अम्मा सुबह होते ही मुझे घर का सारा काम समझा देती और खुद मौलवी साहब के घर चली जाती। अम्मा से तो अपने घर के काम नहीं होते थे, ना जाने वो मौलवी साहब के घर जाकर क्या करती थीं। एक दिन मैं घर के कामकाज करके अरबी पढ़ने के लिए जाने लगी तो रास्ते में शगुफ्ता खाला नसरीन आंटी से बात कर रही थी कि शगुफ्ता खाला वो औरत थी जो मौलवी साहब के पिछले बच्चे में उनकी बीवी का ख्याल रखने के लिए महीना भर उनके घर गई थी। वो नसरीन आंटी से कह रही थी कि मौलवी साहब 1 महीने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी थी और अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हैं। उनकी दुनिया ही बदल गई है। मौलवी साहब की वजह से जो सुकून उन्हें मिला है, शायद अगर वो मौलवी साहब के घर ना जाती तो ज़िंदगी भर उस सुकून से महरूम रह जाती। वो मौलवी साहब की तारीफ़ों में मगन थी और मैं सोच रही थी कि भला 1 महीने मौलवी साहब की बीवी की खिदमत करने से शगुफ्ता खाला की ज़िंदगी में ऐसी भी कौन सी खुशियाँ आ गई हैं जो वो फूले नहीं समा रही। मौलवी साहब ने शगुफ्ता खाला को कौन सा सुकून दिया था जिसका जिक्र करते हुए भी उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। उनकी बातें भी मुझे बिल्कुल अजीब सी मालूम हो रही थी। एक बीमार औरत की देखभाल करके वो ऐसे खुश थी जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 4-5 दिन ही गुजरे थे, लेकिन एक अजीब सी बात मैंने अम्मा के अंदर महसूस की थी। अम्मा पहले 3-3 दिन तक नहाने का नाम नहीं लेती थी, और अब अम्मा मौलवी साहब के घर जाने से पहले रोज़ नहा धोकर तैयार होती जैसे वो ईद के दिन तैयार हुआ करती थीं। अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर के लिए निकल जाती और पीछे से घर के सारे कामकाज मेरे सर पर आ जाते। हैरत की बात यह थी कि अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना नहीं छोड़ा था, जबकि मेरा अंदाज़ा तो कुछ और ही था। जब से अम्मा मौलवी साहब के घर जाने लगी थीं वो बिल्कुल खामोश हो गई थीं। हर वक्त गुमसुम सी नज़र आती। घर आने के बाद भी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, जबकि इससे पहले तो अम्मा शाम का सारा वक्त छत पर ही गुजारा करती थी। अम्मा को छत पर जाकर सारे मोहल्ले का नज़ारा करने में बड़ा मज़ा आता था।
अम्मा अभी तक बहुत ज़्यादा जवान लगती थीं। जो भी अम्मा को देखता वो अम्मा की खूबसूरती से मुतासर हो जाता था। अम्मा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। अम्मा का खूबसूरत सरापा और उस पर फैशनेबल लिबास देखने वालों पर क़यामत डालता। मोहल्ले के जवान लड़के भी अम्मा की खूबसूरती की तारीफ़ किया करते थे, जिसे सुनकर अम्मा खिल उठती। अब्बा भी अम्मा की इसी खूबसूरती के पीछे पूरी तरह दीवाना था। अम्मा की बड़ी से बड़ी गलती भी अब्बा को नज़र नहीं आती थी। अब्बा ने अम्मा से मोहब्बत की शादी की थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 12 दिन होने वाले थे। उन 12 दिनों में मौलवी साहब अरबी पढ़ाने के लिए बहुत देर से तशरीफ़ लाते और बहुत जल्द मदरसे से वापस अपने घर भी चले जाते। कभी कभी मुझे यह ख्याल आता कि जब अम्मा मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही हैं तो फिर मौलवी साहब मदरसे में पूरा वक्त क्यों नहीं दे रहे और वह जल्द घर वापस क्यों चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी में अम्मा सारा वक्त क्या करती हैं। एक दिन सुबह ही सुबह अम्मा नहा कर निकली और मौलवी साहब के घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने यही सवाल अम्मा से भी किया कि मौलवी साहब अब पहले की तरह मदरसे में 2 घंटे तक क्यों नहीं बैठते, वो वापस घर क्यों चले जाते हैं, और अगर वो वापस चले जाते हैं तो फिर आपको क्यों शाम तक उनके घर रुकना पड़ता है। मेरे इतने सारे सवालों पर अम्मा ने गुस्से से घूर कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मौलवी साहब की टोर रखने की बजाय अरबी में दिल लगाकर पढ़ा कर। अगर मुझे मौलवी साहब से तेरी ज़रा भी शिकायत मिली तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। माँ का सख्त लहजा देखकर मैं डर गई और खामोश हो गई, लेकिन यह सवालात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और इतना तो अच्छी तरह जान गई थी कि ये मेरी अम्मा की खूबसूरती देखकर हर मर्द पूरी तरह घायल हो जाता है और अपनी खूबसूरती के जलवे बखेर के अम्मा को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कहीं मौलवी साहब भी तो ये सोच आते ही मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह की। मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती थी। मौलवी साहब तो बहुत ही नेक और परहेजगार थे। हर गुजरते दिन के साथ अम्मा के रवैये में वाज़ह तब्दीली आ रही थी। वो मुझसे और अब्बा से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। मौलवी साहब के घर से वापस आते तो अम्मा अपने कमरे में बंद हो जाती। बहुत देर दरवाज़ा बजाती तो तब कहीं जाकर दरवाज़ा खोलती। मौलवी साहब का नाम लेती तो उनका लहजा ऐसा शीरी हो जाता कि मैं हैरान रह जाती। कहाँ तो पहले अम्मा मौलवी साहब के घर जाने के लिए राज़ी नहीं थी और अब सुबह होते ही दौड़ी चली जाती थी। अब तो अम्मा को दरवाजे पर खड़े रहने का वक्त भी नहीं मिलता था। एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि आज वो मौलवी साहब के घर ना जाएं, बल्कि मेरे पास घर में ही रुक जाएं। लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मौलवी साहब की बीवी को मेरी ज़रूरत है। मैंने हैरानगी से अम्मा को देखा। मुझे भी तो अम्मा की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें मुझसे कहीं ज़्यादा मौलवी साहब की बीवी का ख्याल था। मौलवी साहब के घर में ना जाने ऐसा कौन सा जादू था कि जो औरत उनके घर जाकर आती वो उनकी मुरीद हो जाती। अब्बा भी बहुत खुश थे क्योंकि मौलवी साहब ने अम्मा को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए अब्बा से कहा था कि अम्मा बहुत ही अच्छी और नेक औरत हैं, जो बहुत दिल से मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही हैं। मौलवी साहब के मुंह से अम्मा की तारीफ़ सुनकर अब्बा का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था, जबकि मैंने अपनी अम्मा को कभी नेक नहीं पाया था। वो तो रमज़ान में भी मुश्किल से नमाज़ पढ़ती थीं और दूसरों का ख्याल करना भी अभी बिल्कुल नहीं आता था। फिर मौलवी साहब को अम्मा में न जाने कौन सी खूबी नज़र आ गई थी। अम्मा जब शाम को मौलवी साहब के घर से वापस लौटती तो अब्बा ने अम्मा को भी मौलवी साहब की तारीफ़ के बारे में बताया, जिसे सुनकर अम्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अम्मा बहुत ज़्यादा खूबसूरती महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ौरन ही चाय बनाकर अम्मा के आगे रख दी। अम्मा जब भी मौलवी साहब के घर से वापस आती वो बहुत ज़्यादा थकी होती। शायद वह वाकई बहुत दिल लगाकर मौलवी साहब की बीवी की खिदमत कर रही थी। अगले दिन अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर चली गई और मैं घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी ही देर में अम्मा की बड़ी बहन अचानक हमारे घर आ गई। वो बहुत दूर रहती थीं और ख़ुसूसन अम्मा से मुलाकात के लिए आई थीं। मैंने उन्हें बैठाया और कहा, खाला आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अम्मा को मौलवी साहब के घर से बुला कर लाती हूँ। खाला भी यह सुनकर दंग रह गई थी। अम्मा मौलवी साहब की बीवी की खिदमत के लिए जाने लगी हैं। मौलवी साहब का घर हमारे घर से 2 गली आगे ही था।
मैं फ़ौरन चादर डालकर मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ी। मौलवी साहब का मकान पुरानी तर्ज का था। दरवाजे पर कोई लाक भी नहीं था। एक छोटा सा कुंडा अटका हुआ था जिसे बासानी हटाकर मैं अंदर दाखिल हो गई। इस घर में 3 छोटे छोटे कमरे ही थे और एक बड़ा सा कच्चा सहन था। सामने वाले कमरे में झांकते ही मुझे मौलवी साहब की बीवी नजर आई। मौलवी साहब का बच्चा भी उसके साथ ही सो रहा था। मैंने दूसरे कमरे में झांका तो अम्मा मुझे वहाँ भी नजर नहीं आई। अगर मौलवी साहब की बीवी और बच्चा सो रहे थे तो अम्मा कहाँ थी? एक छोटा कमरा सहन पार करके पीछे की तरफ था जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। शायद अम्मा वहाँ थी, मौलवी साहब की बीवी सो रही थी। इसलिए मैंने बिना आहट किए अम्मा को बुलाने की घर से सहन पार करके पिछले वाले कमरे की तरफ गई। कमरे के करीब पहुँचते ही मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे मौलवी साहब की आवाज़ भी आई। तो मैंने कमरे के अंदर जाने की बजाय खिड़की से अंदर झांका तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी माँ मौलवी साहब के सामने बैठी ज़ारो-कतार रो रही थी। मौलवी साहब अम्मा को कुछ सुना रहे थे। रोते रोते अम्मा की हिचकी बंद हो गई। मौलवी साहब के लहजे में बहुत ही ज़्यादा मिठास थी और उनका अंदाज ऐसा था कि इंसान के दिल को चीर जाता। अम्मा को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अम्मा किसी और ही दुनिया में हो। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मौलवी साहब के लफ्ज़ों में ऐसी तासीर थी कि कुछ देर के लिए मुझे भी दुनिया का होश नहीं रहा। मौलवी साहब अम्मा को समझा रहे थे कि हमारे प्यारे नबी का फरमान है, हया ईमान से है और ईमानदार जन्नत में दाखिल होगा। बेहयाई बद अहलाकी और बद अहलाक का मुकाम दोज़ख है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं। मैं जान गई थी कि अब मेरी माँ के कदम हमेशा नेक रास्ते पर ही उठेंगे। कभी कभी इंसान की कोई छोटी सी नेकी अल्लाह को इस कदर पसंद आ जाती है कि अल्लाह इंसान को अपने रास्ते के लिए चुन लेता है। शायद मेरी माँ की भी कोई ऐसी नेकी ही उनके काम आ गई थी। कुछ अरसा में ही अम्मा ने मुकम्मल तौर पर पर्दा शुरू कर दिया था। अब ना ही वो शाम के वक्त छत पर जाती थी और ना ही अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती थी। मौलवी साहब की बीवी ठीक हो गई थी और अब उनको माँ की ज़रूरत नहीं थी। अम्मा ने बाकायदगी से दरस कुरान में जाना शुरू कर दिया और अम्मा की ज़िंदगी में वाज़ेह बदलाव आ गया था। हमें हमेशा अम्मी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि हया और ईमान दोनों एक साथ में, अगर में उनमें से एक उठा लिया जाए तो दूसरा खुद उठ जाता है।